प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के नाम पे आपको आह्वान करते हैं, सभी को जय मसीह की। आइए एक वचन पढ़कर परमेश्वर की आराधना की ओर चलते हैं। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका पहले पद से तीसरे पद तक पढ़ेंगे। मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। परमेश्वर का वचन सही कहता है कि अगर हम अपने कामों को परमेश्वर पर डाल दें तो हमारे कामों को, हमारे जो कल्पनाएं हैं, सोच है, परमेश्वर सिद्ध करेगा। आइए इस वचन को लेकर परमेश्वर की आराधना में आगे चलते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आइए अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर की सन्निधि में चलें। खुदावन धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम सभी को इकट्ठा किया है, हर कोई अपने परिवार के साथ, अब प्रभु जी अपने घरों में तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर रहा है। खुदावन हम चाहते हैं तेरी सन्निधि वहाँ पे होने पाए, तेरी आत्मा वहाँ पे होने पाए। हर किसी को तू एकजुट होकर प्रभु जी तेरी स्तुति और आराधना करने में मदद कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं। तेरे प्यार से तूने प्यार किया, तेरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्ज़ी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान रहूंगा। धन्य है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। कुछ नहीं मेरी जिंदगी तेरे जैसा कोई नहीं। हाँ प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। माँ से भी गहरा प्यार परमेश्वर आपका ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನ ದೇವರೇ, ತಾಯಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕಲ್ವರಿ ಕ್ರೂಜ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗಾಗಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ.
ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕ್ಷಣವು ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. तुझ में ही मेरी जिंदगी, तेरे जैसा कोई नहीं. तुझ में ही मेरी है खुशी, तेरे जैसा कोई नहीं. कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं. मेरी जिंदगी, तेरे जैसा कोई नहीं. तुझ में ही मेरी है खुशी, तेरे जैसा कोई नहीं. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖುಷಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೌಲನು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷವು ಕರ್ತನಾದರೆ ನೀವು ಕೊಡುವಂಥ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವು ನಿತ್ಯವಾದಂಥ ಸಮಾಧಾನವು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಲೋಕವು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾರದು ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದವರೇ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆರಾಧನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದೇವರೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತನಾದೇವರೇ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದವರೇ. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ಕರ್ತನಾದೇವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಿ ಕರ್ತನೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಭಕ್ತಿಯವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ, ನಾನಿನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Hallelujah, 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 Hallelujah. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ
ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ದೇವರು, ಈಗ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸದುತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಬರೆಸುವ 15ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರದವನು ಫಲ ಕೊಡದವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಓದುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವರಾಗಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು. ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ, ಆರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಜನರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಮಾರ್ಪಡಿಸು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶ್ವಾಸವು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗದೆ ಅದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕರ್ತನೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಆದವರೇ ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಕರ್ತನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಬಲಪಡಿಸು ಕರ್ತನಾದ ದೇವರೇ. ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. ಆರೋಗ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ಒಂದು ಆರಾಧನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿದೆ ತಂದೆ. It's great to be here. My name is David Svensson from Sweden. ये बहुत ही अच्छा है आपके मध्य में उपस्थित होकर. मेरा नाम डेविड स्वेंसन है, मेरा देश है स्वीडन से मैं आया हूँ. Sweden is not in India, so it's 6,000 kilometers from here. स्वीडन जो है वो भारत देश में नहीं है, लेकिन भारत देश से 6,000 मीलों दूर स्वीडन देश है. Yeah, so I'm actually a man who loves this country, India, very much. लेकिन मैं इस भारत देश को बहुत ही चाहता हूँ, प्यार करता हूँ. I've been coming for the last, I don't know, 8 years. और मैं भारत देश में पिछले 8 सालों से मैं आते जा रहा हूँ. And there's something that God puts in my heart for this country. I love it. और इसके लिए परमेश्वर ने खास करके एक जगह, खास करके एक योजना मेरे हृदय में रखा है परमेश्वर ने. I don't know if you've been listening to a lot of messages lately about the virus and maybe in the news you hear about the virus and you just don't want to hear of it anymore. और हो सकता है कि आप इस वायरस के बारे में, अभी जो परिस्थितियां चल रही है उसके बारे में आप लोगों ने, बहुत सा लोग आप डरे हुए या फिर बहुत संदेश को आप लोगों ने सुना होंगे. I think we're all tired of hearing of the bad news that are coming out. और मुझे लगता है कि हम सभी लोग भी थक गए हैं इस जो भी बुरे संदेश आ रहे हैं, बुरे इस वायरस के बारे में रिपोर्टिंग आ रही हैं. Some days I say to myself, I've had enough. I don't want to hear about this anymore. और कुछ दिन पहले मैं भी ऐसा ही सोचा, बहुत हो गया, मैं अभी इसके बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहूंगा अभी. And I see myself praying and asking God, please remove this virus from this planet. We don't want it anymore here. इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से, परमेश्वर इस प्लेनेट से इस वायरस को निकाल दे परमेश्वर, ये हमें अभी अब नहीं चाहिए. So I think we're all desiring the same thing. और मैं आशा करता हूँ कि हम सभी लोग यही इच्छा रखकर हम लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं. But I've been thinking, I think for weeks now, what is really going on? और ये हफ्तों भर से मैं यहाँ पे मैं आश्चर्य हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो रहा है. Is God involved in this? और क्या परमेश्वर इसमें शामिल है? Does God want to say something? क्या परमेश्वर इससे हमें कुछ सिखाना चाहता है? Is he trying to teach us something? क्या परमेश्वर कुछ बताना चाहता है इससे? And so those thoughts have been going on in my mind lately. और ऐसे ही बहुत सारे ख्याल मेरे मन में आते रहते हैं. So what I did a few weeks ago, I sent a message to people from all over the world. और इसीलिए मैंने क्या किया, इस दुनिया भर में मेरे जितने भी दोस्त हैं और लोग हैं उनको मैंने एक संदेश भेजा. So this is a survey, online survey, asking people, what do you think God is saying during this time? और इसको मैंने ऑनलाइन सर्वे के द्वारा मैंने ये जानने की कोशिश किया कि लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में. And do you think he is saying something? What is he saying if he's saying something? और मैंने लोगों से पूछा कि आप क्या आप बता रहे हैं कि परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, अगर बताना चाहता है तो क्या बताना चाहता है.
I think maybe I did it for selfish reasons because I wanted to know what is God saying. और हो सकता है कि ये मेरी एक स्वार्थ के लिए मैंने भले ही किया हो, क्योंकि मुझे भी जानना है कि क्या है, कि ये परमेश्वर के द्वारा है या फिर क्या है इसके बारे में। So I think right now I have more than 20 countries who have replied. और इसमें मैं ज्यादा करके 20 से भी अधिक देशों ने मुझे उत्तर दिया, And more than 50 people have made comments. और ज्यादा करके 50 लोगों से भी अधिक लोगों ने कमेंट करके मुझे ये बताया। And I hope I can share those, maybe more of those thoughts later on as I have those documents. और उसको मैं जैसे ही मुझे आते हैं और उसको मैं प्रिपेयर करता हूँ, तभी आपके सामने मैं जरूर बांटूंगा उनको। But I've learned something from that survey. और उस सर्वे के द्वारा कुछ मैंने सीखा, Because most people are saying the same thing. और क्योंकि ज्यादातर लोग एक ही बात को बोल रहे हैं। And if a lot of people say the same thing, you have to wonder, is maybe this from God? बहुत सारे लोग अगर आपको कहते हैं तो आप लोग सोचने लगेंगे कि हाँ, शायद ये परमेश्वर की तरफ से है। So one of the questions we ask ourselves is, what is happening, and do we understand this time? और ये जो बहुत बड़ा एक प्रश्न उठता है कि क्या हो रहा है और क्या हम इसको समझ रहे हैं। Because I think if we don't understand what's happening, we don't know what to do. अगर हम लोग इसको क्या चल रहा है हमें हम समझ में नहीं आया तो हमें क्या करना है इसका कोई भी आइडिया हमें नहीं आएगा। Could you imagine a doctor who is very skilled and has all the knowledge, and a patient comes in with some disease, or he needs a surgery, but he doesn't know, the doctor doesn't know what his problem is. और एक पेशेंट आता है, एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट आता है, तो उसे कुछ रोग लगा हुआ है और उसे एक सर्जरी करना है, लेकिन डॉक्टर को पता नहीं है कि क्या करना है, तो वो एक मुश्किलें खड़ी कर देती है। How is that doctor going to help if he doesn't know what the problem is? उसका अगर समस्या क्या है वो उसको अगर नहीं पता चलेगा तो उसका सलूशन कैसे निकालेगा। So he needs to understand what is happening. तो इसके लिए वो डॉक्टर के लिए जायज है कि वो उस समस्या को समझे, Because then he knows what to do. और तभी वो उसे क्या करना चाहिए, क्या इलाज करना चाहिए उसे पता चलेगा। I think that's the same for us. और वही जो मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए भी सही है। We need to understand what's happening. और हमें भी समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। So that's my first point, और understanding what's happening and knowing what to do. और ये मेरा पहला अंश है कि क्या हमें जानना चाहिए कि क्या हो रहा है। And like I said, is God doing something? और जैसे कि मैंने बताया कि अगर परमेश्वर कुछ कर रहा है, Is he saying something? और क्या वो परमेश्वर कुछ बताना चाहता है, Why is he not stopping it? और इसको क्यों नहीं रोक रहा है। And here's my second point. और ये मेरा दूसरा अंश ऐसा है, I think that God is using this time to test us. और ये भी है कि परमेश्वर हमें परखने के लिए इस समय का इस्तेमाल कर रहा हो। And why do I think that? और ये कैसा, ऐसा क्यों है। I've been reading the Old Testament. और मैं पुराने नियम को अध्ययन कर रहा था, I've also recently been reading a book about the wilderness. और जो वादियों के बारे में मैं वहां पे पढ़ रहा था। And we can see there, both in the Old Testament, in the New Testament, that God takes us through a time of wilderness. और यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, उसके द्वारा मैंने समझा कि परमेश्वर हमें उस जंगल के मार्ग से हमें लेके जाता है कभी कभी। For Israel, they were walking through a desert. और हम लोग जानते हैं कि वो जंगल के मार्ग और रेतों से गुजरकर वो वहां पे मिस्र देश से जा रहे थे। They were leaving Egypt and going to the promised land. और जो इजरायली थे वो मिस्र देश को छोड़कर इजराइल जो वायदे की जो उनके भूमि थी वहां पे वो जा रहे थे। And actually that trip is very short. और अगर हम लोग वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही नजदीक है, इजराइल और इजिप्ट देश से मिस्र देश से जाना बहुत ही नजदीक है। Or it could have been short. और हो सकता है कि ये बहुत ही जल्द से जल्द परमेश्वर उन्हें लेके जा सकता था। But you know how long they walked in the wilderness? और तो आपको पता है कि उन्होंने कितना दिन वहां पे चला? 40 years. और वो वहां पे उस दिन से लेकर 40 सालों तक परमेश्वर ने उनको वहां पे चलाया जंगल में। Why 40 years? और क्यों 40 साल क्यों? What was God doing? और क्या परमेश्वर क्या करना चाहता है इससे? Maybe the question is also, what were they doing? और ये भी प्रश्न उठता है कि वो लोग क्या कर रहे थे?
do you know what they were doing? क्या इजरायली क्या कर रहे थे, आपको पता है? I think many of them started to complain. हाँ, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरोध में कंप्लेनिंग शुरू किया। Some of them were saying, "Oh, it was so much better when we were in Egypt. They were slaves there. How और could यहाँ it be पे better?" और यहाँ पे वो लोग बोल रहे थे, जो मिस्र देश में वो लोग गुलाम थे, फिर भी बोल रहे हैं कि हम लोग मिस्र देश में बहुत ही खुश थे। And we had food, we had this and that, and now we are struggling. और वो लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, हमारे पास खाना था, हमारे पास पानी था, हमारे पास वो था, ये था, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। So I think that God wanted them to react in a certain way. हाँ, इसलिए परमेश्वर उन्हें वहां पे चलाया ताकि उनके गुणों को या फिर वो कैसे बर्ताव करते हैं उस परिस्थितियों को। I think He wanted to test them. He wanted them to learn a lesson. और परमेश्वर ये परखने से परमेश्वर चाहता था कि उन्हें कुछ सीख मिले। He also wanted them to have this hunger for Him. और वो परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर के लिए वो एक भूखे वो रहे। I think that they were relying too much on their own things and things they could control. और यहाँ पे जो लेकिन में इजरायली क्या कर रहे थे, वो लोग जो भी कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, उनके ऊपर उन्होंने ज्यादा नजरें बिठाए रखी। Even if they were slaves, I think maybe they thought, yeah, I know what I need to do every day. I need to go to work and this and that. But now in the desert, they didn't know what to do. यहाँ पे जब वो गुलाम थे मिस्र देश में, उन्हें पता था कि वो लोग को सुबह उठना है, खाना खाना है और वहाँ पे काम को जाना है। तो यहाँ पे मिस्र देश छोड़कर जब आए जंगल में, उन्हें पता नहीं था कि क्या करना है। So this time for us as well, I think it's a time of testing. और यहाँ पे ये समय भी हमारे लिए एक परीक्षा की घड़ी है। A time to see if we are faithful. और ये समय निश्चय करता है कि हम लोग कितने विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के लिए। A time to see if we really love the Lord. और ये समय बताएगा कि क्या हमें सही से परमेश्वर से प्रेम है। And if you look at the one verse that is in the Old Testament, और ये पुराने नियम में एक अगर वाक्य ऐसा देखें, and there's a story of Job. अय्यूब की एक कथा को आप जानते होंगे। And it's many chapters, so we're not going to go through that story. और यहाँ पे अय्यूब की जो किताब है बहुत सारे चैप्टरों से भरा हुआ है, इसलिए हम लोग वो पूरे चैप्टर में नहीं जाएंगे। If you haven't read it, I would suggest you do that. और यदि आप अब तक पढ़े नहीं हैं तो मैं आपको निश्चय रूप से रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर पढ़ें उसको। But Job he was going through a very difficult time. और यहाँ पे अय्यूब की जो परिस्थिति थी, बहुत ही बुरी परिस्थितियों से वो गुजर रहा था। He lost everything. और उसने सब कुछ खोया हुआ था। And he must have felt, some days like, what is going on? और यहाँ पे वो भी सोच रहा होगा कि कुछ दिनों के लिए क्या चल रहा है मेरे जीवन में। And I'm sure he asked God, this is what's happening. और यहाँ पे हो सकता है कि परमेश्वर से उसने पूछा होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। But God was doing something behind the scenes. और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब पढ़ते हैं परमेश्वर उस पर्दे के पीछे वो कुछ कर रहा था काम अय्यूब के लिए। I think it took him some time to understand what God was doing. और यहाँ पे लगता है कि वो कुछ समय लगा अय्यूब को ये सोचने में या फिर समझने में कि परमेश्वर क्या कर रहा है। But he understood that God was doing something. और यहाँ पे लेकिन उसने ये समझा कि परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है। And if you look at the verse 23, verse 10. और यहाँ पे अगर chapter 23 verse 10. और अगर आप अध्याय 23 और उसका 10वां वचन अगर आप देखते हैं, It says, but he knows the way that I take. और यहाँ पे अय्यूब कहता है कि उसे पता है कि मुझे कौन से राह पे चलाना है। When he has tried me, I shall come out as gold. और यहाँ पे उसने जब वो मुझे परखता है तो उसके बाद में मैं एक सोने के समान निखर कर आऊंगा। I don't know if you know the process of refining gold. और यहाँ पे आप पता नहीं कि कितना लोगों को पता है कि जब एक सुनार वो सोना को निकालता है, उसे शुद्ध करता है। It's a process where you actually have to crush probably that stone where it's stuck on. यहाँ पे जो एक पत्थर होता है वहाँ पे जो वो पत्थर से दबाना पड़ता है वहाँ पे। You have to remove all the impurities. और यहाँ पे जो अशुद्ध सारे जो मिट्टी हो या फिर अदर तरीके से चीजें हो उसको निकाल के उसे शुद्ध करना पड़ता है।
You have to melt it, put it into the fire so that you can separate. और यहाँ पे उसे अंगारों में डालकर वहां पे उसे शुद्धिकरण करना पड़ता है, उसे पिघला के उस खरा सोने को निकालना पड़ता है। I think if the gold could talk, और यदि अगर वो सोने अगर बात कर सकता था the gold would say, "This is a horrible process." और वो सोना अगर बात करता तो वो बोल देता था कि ये बहुत ही दर्दनाक एक And it's painful. और ये बहुत ही दर्दनाक है। But once it's been refined, you know, it's very valuable. और लेकिन जब वो शुद्ध हो जाता है उसकी कीमत बहुत ही बढ़ जाती है And it's beautiful. और वो बहुत ही सुंदर दिखता है। And who doesn't want gold? और किसको सोना पसंद नहीं है? I know Indians love gold very much. और मुझे पता है कि भारतीय हर एक घर में सोना हो वो लोग चाहते हैं, But when it's refined. और लेकिन सिर्फ तभी जब वो शुद्ध हो। So I think God is doing something this time. और इसीलिए मुझे लगता है कि परमेश्वर कुछ ना कुछ कर रहा है इस समय में। There's, I don't know if it's a Chinese proverb or so. It's not. It doesn't really say in the Bible, but there's one proverb that says, "True gold is not afraid of the fire." थ्रू गोल्ड। True gold, like real gold. तो यहाँ पे मुझे पता नहीं कि ये चाइनीज का एक वाक्य है फिर सेइंग्स है, तो वो कहता है कि सच्चा खरा सोना शुद्ध होने से नहीं डरता है। So what does that mean? और इसका मतलब क्या है? That the gold says, well, you know, no matter what is going to happen, you know, or to me, if it's going to make me a better material, if it's going to make me better, then I want it. और यहाँ पे यदि जो कुछ भी हुए लेकिन अगर मुझे वो एक अच्छा बेहतर व्यक्ति बनाता है, मुझे शुद्ध करता है, तो वो मुझे चाहिए। So we're going through a pandemic. और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक महामारी से गुजर रहे हैं। And the virus is everywhere. In Sweden, I think almost 4,000 people have died so far. और यहाँ पे ये जो महामारी है सिर्फ भारत में नहीं है, बहुत सारे देशों में है, और स्वीडन देश में तो बहुत सारे लोग की उनकी मौत हो गई। And thousands have been infected. और हजारों हजार लोग वहाँ पे इस महामारी से ग्रसित हैं। There's not a country that's not going through the same crisis. और यहाँ पे ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इस महामारी से ना गुजरा हो। But we look at it, you know, and we just say, oh, we want it to go away. और यहाँ पे जब हम लोग उसको देखते हैं तो इससे भागने की कोशिश करते हैं, हाँ हमें ये नहीं चाहिए। But what if this time God wants to make us better people? और यहाँ पे क्या ऐसा होगा कि परमेश्वर यही समय पे हमें एक बेहतर व्यक्ति बनाने की कोशिश कर रहा हो? Do we just want to become rebellious and complaining and upset and negative? क्या आप इस परिस्थितियों में आप परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरोध में गलत बातें कहना, परमेश्वर के विरोध में अपना विश्वास को आप छोड़ देते हैं? Or are we becoming more loving, more kind, more gracious, more thankful? और या इस परिस्थिति में आप बहुत ही दयालु हो जाते हैं, आप बहुत ही करुणामय हो जाते हैं, या फिर आप बहुत ही प्रेमी हो जाते हैं व्यक्ति? And that choice you have to make that choice. और वो निर्णय आपको लेना है, वो निर्णय आपके हाथों में है। You know, we have that promise. There's lots of promises. I think there's over 3,000 promises in the Bible. और यहाँ पे जो वायदे हैं, बहुत सारे वायदे हैं बाइबल में, मुझे लगता है कि 3,000 से भी अधिक वायदे वहाँ पे लिखे गए हैं। Maybe it's something you could start doing. Like, what does God promise? और यहाँ पे जो यही आप कर सकते हैं कि परमेश्वर का वायदा क्या है। And the promises usually come before He's asking us to do something, right? और यहाँ पे जो वायदा ये आता है, जो वो हमें कुछ करने के लिए बोलता है, उससे पहले आता है। He wants us to, you know, change. और यहाँ पे वो हमें बदलना चाहता है या फिर कुछ बदलना चाहता है अगर। So let's look at one psalm, Psalm 50. और यहाँ पे आप भजन संगीता उसका 50वां अध्याय को अगर आप देखते हैं, verse 15. और अगर उसका 15वां आयत अगर आप देखते हैं, So 50:15. और उसका 50वां अध्याय उसका 15वां आयत, It says, "And call upon me in the day of trouble." Who's in trouble today? और यहाँ पे जो मुझे पुकारो, आपके मुश्किलों के समय में मुझे पुकारो, मैं आपको उत्तर दूंगा। तो आज के मुश्किल घड़ी में कौन है? I think we feel like we're in trouble because it's out there. और यहाँ पे हम सभी लोग मुश्किलों में पड़े हैं क्योंकि हम घर से बाहर निकलते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। But the psalm says, "Call upon me on the day of trouble."
और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे अध्याय कहता है कि मुश्किल घड़ी में मुझे पुकारो I will deliver you, और मैं उससे आपको छुड़ाऊंगा and you shall glorify me. और आप मेरी प्रशंसा करेंगे, महिमा करेंगे। So he promises that he will deliver us, और यहाँ पे परमेश्वर वायदा करता है कि परमेश्वर इस संकट के घड़ी से हमें निकालता है and we will glorify him. और इसके लिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है। And sometimes you think, oh, he's going to deliver me from the virus. Yes, he might. और यहाँ पे बहुत सारे समय में हम लोग सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर हमें इस वायरस से हम लोग को बचाएगा, हमें उसको छुटकारा देगा। हाँ वो But करता I है। think he will also deliver us from becoming bitter, और यहाँ पे इतना ही नहीं लेकिन वो हमें खड़वाहट से भी वो बाहर निकलता है to become negative, और ये जो नकारात्मक सोच हम लोग रखते हैं complainers, और हम लोग कुड़कुड़ा होने वाले ungrateful. और परमेश्वर को कभी भी हम लोग महिमा न देने वाले। He wants to give us so much. और परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है And he has promised that he will give it to us. और यहाँ पे परमेश्वर ने वायदा किया है कि वो हमें जरूर देगा। Let's take another look at another Psalm, Psalm 40, verse 17. आइए और एक भजन संगीता उसका 46वां अध्याय हम अगर देखते हैं तो And maybe you feel like this many times, not just physically, but spiritually. और यहाँ पे जो ये शारीरिक रूप से नहीं है लेकिन आत्मिक रूप से आपने बहुत सारे बार महसूस किया होगा इसको। So 40:17, it और says, As for me, और 17वां आयत में 40 अध्याय 17वां आयत में लिखा है, as for me, I am poor and needy, और मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, but the Lord takes thought for me. तभी प्रभु मेरी चिंता करता है। You are my help तू मेरे सहायक and my deliverer. और छुड़ाने वाला है। Do not delay, oh my God. हे मेरे परमेश्वर विलंब ना कर। So we see this psalm, the state of, I think it was David who wrote this. Not और so मुझे sure. मुझे लगता है कि इस दाऊद ने इस भजन को लिखा होगा और जब वो लिखा होगा But it says he's poor and needy, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तो दीन और दरिद्र हूँ and he wants God's help. और परमेश्वर को पुकार रहा है कि मुझे आपकी जरूरत है। But God doesn't come and help if we are not connected with him. और यहाँ पे परमेश्वर हमें मदद नहीं करेगा जब तक परमेश्वर के साथ हम लोग एक अच्छे संबंध में हो। He's expecting something from us. और परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है And I think that is to seek him. और वो एक ही है कि आप परमेश्वर को ढूंढें। So he wants us to seek him with all of our heart. और वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पूरे दिल से हृदय से आप उसे ढूंढें। And I think during this time, we've been able to reduce the amount of distractions that we have in this world. और यहाँ पे जो यही एक समय है जो इस दुनिया में जितना भी हमें रुकावटें हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। If you look at the news, there's one topic that they bring up every day. और Just one topic. और यदि अगर आप न्यूज़ को देखते हैं तो सिर्फ एक ही वहाँ पे टॉपिक हम लोग देखने के लिए मिलता है। And you would think nothing else is happening in the world. और यहाँ पे आप सोचते होंगे कि इसको छोड़कर कुछ भी नहीं हो रहा है संसार में Everything's still running, और यहाँ पे हर सब कुछ हो रहा है maybe still with lots of problems, but the main topic is just the coronavirus. और यहाँ पे हो सकता है कि कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हों लेकिन जो मेन मुद्दा जो है वो कोरोना वायरस का होता है। But when the virus is not there, there's so, thousands of different things that are coming from all directions. और यहाँ पे जो जब कोरोना वायरस नहीं था या फिर कोरोना वायरस चला जाएगा बहुत सारे विविध न्यूज़ को हम लोग देख सकते हैं। And what is important today, it's, you're worried about your family, और यहाँ पे आपके परिवार के बारे में आप जब चिंतित होंगे health is important, और आपके जो हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है and make sure you can feed yourself and your family. और यहाँ पे आपको यही चिंता रहती है कि आप अपने परिवार को कैसे खिलाएं पिलाएं। Maybe the long list of other things that you did before are not so important today. और यहाँ पे जो बहुत ही एक लंबी लिस्ट है जो आपने पहले दिनों में किया हुआ अभी वो उसका कुछ भी मायने नहीं है। So I think God is giving us a time to really think and to seek him. और मुझे लगता है कि परमेश्वर एक खास समय दे रहा है कि उसको हम लोग परखें और सोचें। Some days actually I feel very discouraged. और यहाँ पे एक बात के लिए मैं बहुत ही एक डिस्करेज हूँ।
And I did something funny or crazy, I don't know what you want to call it. और मैंने एक बहुत ही विचित्र रीति से किया या फिर पागलपंती आप बोल सकते हैं इसे, पता नहीं। Maybe India inspired me with this thing. और हो सकता है कि भारत इससे बहुत ही इंस्पायर्ड हो जाए। But you know, there's 3 colors we're talking about these days. और यहाँ पे 3 रंगों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। Do you know what colors I'm talking about? और आपको पता होगा कि आप 3 रंग मतलब कौन से रंग के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। One is red, और एक जो है लाल रंग, orange, और दूसरा जो है ऑरेंज, and green. और दूसरा जो है हरा रंग ग्रीन। Right? The zones, we're talking about the different zones. India is divided into different zones. और यहाँ पे अलग अलग क्षेत्र के बारे में हम लोग देख रहे हैं, डिफरेंट जोन्स के बारे में, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। So some days I was feeling very down and discouraged. और यहाँ पे कुछ समय में मुझे लगता था कि बहुत ही उत्तेजित नहीं हुआ हूँ। I mean, being under lockdown, I think it's natural that we feel discouraged and और ये जो आसान बात है कि इस लॉकडाउन के समय में हम लोग उत्तेजित ना हो, डिस्करेजमेंट बहुत आती है हमारे जीवन में। So I took my phone and I downloaded one app. और इसीलिए मैंने क्या किया, मेरा मोबाइल उठाया और एक ऐप को मैंने डाउनलोड किया। And in this app, I can every day put a color to my day. और यहाँ पे जो इस ऐप को लेकर मैंने हर एक दिन को मैंने अलग अलग रंग डालना शुरू किया। And I decided what the colors meant. और यहाँ पे जो मैंने उसके निश्चय किया कि इस कलर का अर्थ क्या होगा। So red is a bad day. और यहाँ पे लाल जो है बहुत ही खराब दिन है। A bad day for me. और मेरे लिए खास करके रेड जो अगर मैं कलर आता है तो वो बहुत ही बुरा दिन है। Yellow, oh, it's not so good. It's not horrible, but it's not very good. It's medium. और यहाँ पे जो ऑरेंज जो है वो उतना अच्छा भी नहीं है और उतना खराब भी नहीं है, वो न्यूट्रल है। And then green days are good days. और जो ग्रीन आता है तो मैं सोचा बहुत अच्छा दिन है। And why did I do that? So I decided every day I'm going to look and make a decision at the end of the day what my day is like. Is it green? Is it orange or yellow? Or is it red? और यहाँ पे दिन के आरंभ से लेकर दिन के जो अंत तक मैं देखता था कि मेरा दिन कैसा था, वो हरा था, लाल था या फिर वो ऑरेंज था। And guess who is the one that can make that color go green, yellow or orange? और यहाँ पे ये कौन कर रहा है कि जो ग्रीन, ऑरेंज, रेड ये दिन जो है किसके वजह से ऐसा हुआ? I can make that decision. I decide, what I want my day to be like. Of course, there are things that are coming my way, but what is my reaction? और यहाँ पे हाँ ये मेरे नियंत्रण में है कि कौन सा दिन को मैं बनाता हूँ, लाल या फिर ऑरेंज या फिर हरा। I'm learning things. One day I was putting food in a mixer. मिक्सर। And I put it on and it exploded. The whole kitchen was full of food. और मैंने एक दिन क्या किया, मिक्सर में मैंने कुछ खाना डाला था और उसको मैंने ऑन किया और उसके बाद में वो एक्सप्लोड हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, पूरे घर में तितर बितर हो गया। I even burned myself. I have some, burning और आप देख सकते हैं निशान भी है मेरा, बहुत ही गर्म था, इसीलिए मैं वहाँ पे चोट भी लगी मुझे। And you would say, okay, this maybe was a really bad day. और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि हाँ वो एक बहुत ही खराब दिन होगा। This should be a red day. और हो सकता है कि लाल दिन होगा। But you can look at that and say, maybe there's something that I am learning through this. और यहाँ पे आप अगर देखते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ मैंने सीखा वहाँ पे। Maybe I should be more careful next time. और यहाँ पे जो दूसरी बार अगली बार में मैं बहुत ही सावधानी बरतूं। So you look at what you're going through and see what you can learn from it. और यहाँ पे जो आप जो भी परिस्थिति में गुजर रहे हैं उससे क्या सीखे हैं ये बहुत महत्व रखता है। The other thing you can do is that if you've had a semi-bad day, you can do something to change that. So some days I would just put on the worship music and just start singing. और यहाँ पे कुछ दिनों में क्या करता हूँ, पूरा सिर्फ आराधना के गीत डालते पूरे दिन तक मैं गुनगुनाता रहता हूँ, गाता रहता हूँ। Or start listening to the Bible on audio Bible. और यहाँ पे ऑडियो बाइबल को मैं सुनता रहता हूँ, वचनों को मैं सुनता रहता हूँ। Or really try to focus and talk to God. और यहाँ पे जो मेरा एक ही मेन मकसद यही रहेगा कि मैं परमेश्वर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूँ।
And that accident somehow becomes a small thing. और यहाँ पे जो वो एक दुर्घटना क्या हो जाती है, एक छोटी सी लग जाती है कभी कभी। So far, I have not had one red day. और यहाँ पे अब तक परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी एक लाल दिन मेरे जीवन में नहीं आया। And you would think after 40-50 days of lockdown, you know, there should be many red days. और यहाँ पे हो सकता आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 50 दिन के करीब करीब हो गए, उसमें से बहुत ही लाल दिन जरूर होंगे आपके जीवन में। I have some yellow days. और हाँ, ये ऑरेंज जो दिन थे बहुत ही हो गए मेरे जीवन में, But most of my days are green. लेकिन बहुत सारे दिन ऐसे थे जो हरे दिन थे, यानी कि अच्छे दिन थे। So what I'm trying to say now is that, you know, we have to make the decision and the choices how we want our days to be. और यहाँ पे ये हमारे नियंत्रण में है कि हम लोग कैसे दिन को हम लोग बनाना चाहते हैं, हमारे कौन सा दिन को हम लोग हरा, लाल या फिर ऑरेंज बनाना चाहते हैं। So how do you respond? और इसके लिए आपका आप किस रीति से आप इसको लेते हैं, What is your reaction? और इसका प्रति आपका रिएक्शन क्या रहता है। Do you get frustrated and become negative? और ये इसके बाद में आप नकारात्मक हो जाते हैं, इसके विषय में सोचते सोचते आप, Or do you start blaming God? और या फिर परमेश्वर के विरोध में आप कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। You know that God is a good God. क्या आपको पता है कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है, So he does not bring any bad things or any evil. और हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, इसीलिए वो कुछ भी बुराई हमारे जीवन में नहीं लाता है। I think most of the times it's our responsibility how we, you know, if we make it a bad day, it's our problem. और यहाँ पे ये हमारे ऊपर निर्भर रखता है कि हम लोग अगर उस दिन को खराब करते हैं तो परमेश्वर का इसमें कोई दोष नहीं है। So know that God is good and turn to him during this difficult times. और यहाँ पे जो परमेश्वर भला है, इसको सोचते हुए आप परमेश्वर के पास आना, निकट आना बहुत ही जरूरी है। You don't want the same thing to happen to you that happened to the Israelites who went through the desert. और यहाँ पे आप नहीं चाहते होंगे कि जो भी इजरायलियों के साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। Many of them didn't learn the lesson. और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उनमें से सबकें सीखी, After 40 years, you know, they still did not learn the lesson. और आपको पता है कि 40 साल के बाद भी उन्होंने वो सीख को नहीं सीखा जो परमेश्वर सिखाना चाहता था, And they missed their promised land. और उन्होंने उस वायदे के उस जगह को खो दिया, वायदे को जगह देखने के लिए उन्होंने मौका खो दिया। They were too concerned about themselves. और यहाँ पे बहुत ही अपने बारे में स्वार्थी थे, अपने बारे में ही सोचने लगे थे, And which actually almost brought tears to me when I read it. और यहाँ पे बहुत ही जब मैं इस वाक्य को पढ़ रहा था मेरे आंखों में आंसू टपकने लगे। God wanted to have that connection and relationship, loving relationship with them. और यहाँ पे परमेश्वर एक अच्छा संबंध उनके साथ वो बनाना चाहता था, He wanted to speak to them individually. और वो हर एक व्यक्तिगत जीवन में वह व्यक्ति के साथ परमेश्वर बातें करना चाहता था। But you know what they did? और आपको पता है कि उन्होंने क्या किया। If you read in Deuteronomy 5:27, और यदि आप पढ़ेंगे उसे डिटोनोमी उसका 5वां और उसका 7वां, they basically said to Moses, no, you go and talk to God, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि आप जाओ, आप परमेश्वर के पास जाकर आप बातें करो, and then see what he says, और उसने क्या कहा देखिए, and then you come and speak to us. और यहाँ पे आप जाओ बातें करो परमेश्वर के पास, उसके बाद में आप आओ हमें सिखाओ। Are we doing the same? और क्या हम लोग भी वही कर रहे हैं? Are we expecting somebody else to tell us, you know, what God is wanting to tell us individually? और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि परमेश्वर आप चाह रहे हैं कि कोई और परमेश्वर के साथ बात करे और परमेश्वर उनके साथ बात करे और वो आके हमें बताएं। I think many times I do that. और बहुत सारे बार में हम लोग में किया है, I want to get the answers from other people. और हर ऐसा होता है कि बहुत सारे बार परमेश्वर क्या चाहता है उसका उत्तर दूसरे लोगों से हम लोग चाहते हैं। Maybe you think, oh, the government has the answers, और हो सकता है कि आप बोल सकते हैं कि सरकार इसका उत्तर दे सकता है, or your parents, और आपका माता पिता उत्तर दे सकता है, or friends that you trust. और जो भी आप जिनके ऊपर भरोसा करते हैं वो आपको बताएंगे। Yeah, sometimes they have answers. और हाँ, जरूरी है कि वो बहुत सारे बार वो लोग आपको उत्तर देंगे, But there are answers that only God can give us. और लेकिन कुछ ऐसे उत्तर हैं जो सिर्फ परमेश्वर ही आपको दे सकता है। And how is He going to give it to you if you're asking somewhere else?
और यहाँ पे वो कैसे दे सकता है कि जब आप दूसरे एक प्रश्न में आप उलझे हो, Go straight to the source. और यहाँ पे सिर्फ सीधा और सीधा परमेश्वर के पास जाइए, Go to God, ask Him. और परमेश्वर के पास जाइए और आप उससे पूछिए। Maybe what He's doing during this time of crisis is different to you than it is to other people. और यहाँ पे ये जो परिस्थितियां है, आपसे बदतर या फिर आपसे बेहतर दूसरे व्यक्ति का जीवन भी अलग है। I think God, He wants everybody to seek Him. और यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति उसे ढूंढे, But I think He has something individually for each one of us to learn. लेकिन उसी रीति से हर एक के जीवन में परमेश्वर का अलग अलग योजनाएं हैं। So don't let this time of crisis, this time of wilderness, just make it a big red, time in your life. और यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि ये जो परिस्थितियां हैं आपके जीवन में बहुत ही प्रभाव डालें, बहुत ही एक बुरा प्रभाव डालें। Make sure that this time of crisis and wilderness becomes a green time in your life. और यहाँ पे आप ऐसा कीजिए ताकि ये जो परिस्थिति है आपके जीवन में एक हरा दिन के समान आपके जीवन में आए। A time where you became so much more thankful. और यहाँ पे ये जो समय में परमेश्वर को आप बहुत ही धन्यवाद दें। A time where you were so concerned about, other people more than you were about yourself. और ये जो समय है ऐसा सोचना कि दूसरे लोगों को अपने आप से छोड़कर दूसरे लोगों के बारे में हम लोग सोचना। A time where you loved like never before. और यहाँ पे ये जो समय है आप परमेश्वर के द्वारा कभी भी इतना प्रेम को आपने पाया नहीं होगा। A time where when everything is so negative, you were the most positive person. और यहाँ पे ऐसा बनाइए इस समय को जो बहुत सारे लोग नकारात्मक थे लेकिन आप सकारात्मक रीति से इसे सोचते होंगे। And why? क्यों? Because you know what God has promised. हाँ, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर का वायदा क्या कहता है। And if you say, I don't really know what God promised, और यहाँ पे क्या आपको ऐसा बोलना चाहेंगे कि परमेश्वर ने क्या वायदा किया मुझे पता नहीं है, don't expect me or anybody else to tell you. और यहाँ पे ऐसा मत आशा रखिए कि कोई आपको आके बताए कि हाँ परमेश्वर आपसे ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है। Go and look and read what is God saying to you and what has He promised. और आ जाइए आपके बाइबल में उठाइए और बाइबल में आप पढ़िए कि परमेश्वर ने क्या वायदा दिया है। I'm at the same time during this crisis or wilderness, I'm reading a book called Happiness. और यहाँ पे जो इस परिस्थितियों में बाइबल के साथ साथ मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू हैप्पीनेस, एक सच्ची खुशी। It's a book by a Christian author. और ये जो एक क्रिश्चियन ऑथर के द्वारा लिखी गई है, लेखक के द्वारा। And I'm learning a lot through this book. और इस किताब से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। But I made that decision. I wanted to read something, that would change me. और मैं ऐसा कुछ पढ़ना चाहता हूँ जो मेरी जिंदगी को बदल दे। And in this book, he's really pointing to the Bible, saying that that's what God wants us. He wants us to be full of joy. और यहाँ पे जो ये किताब जो पूरे रीति से दर्शाती है बाइबल को कि बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर हमें एक खुश की जिंदगी को देना चाहता है, To be happy people. और हमें वो एक अच्छा भले जीवन देना चाहता है। In some ways, you want to be contagious. You want to bring happiness to the world. और यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आप इस संसार को द्वारा आप खुशी को देखना चाहते हैं। So let's not look at all this negative. और इसीलिए आप इस जो भी परिस्थितियां हो रही हैं इसको आप ज्यादा समय इसमें ना बिताएं। Make a decision today और आप आज के दिन निर्णय कीजिए that things are going to change. और परिस्थितियां बदल जाएंगी जल्द से जल्द। Ask God to help you. परमेश्वर से पूछिए ताकि वो आपको मदद करे। Ask Him to speak to you individually. और उसे आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर मुझे मदद कर। I am 100% sure He will say something to you. और यहाँ पे मैं 100% आपको ये वायदा कर सकता हूँ कि परमेश्वर कुछ न कुछ बातें आपसे जरूर करेगा। But it might take some time. और हो सकता है कि कुछ समय ले। We want everything fast now, right now. और लेकिन हमें ये आदत लगे कि हम लोग को जो भी होना है जल्द से जल्द हो जाना है। But wait. लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए। God will say something to you eventually. परमेश्वर आपको जरूर कुछ न कुछ बातें करेगा। Good. Let's finish with a word of prayer. और यहाँ पे आइए एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा इस संदेश को हम लोग खत्म करेंगे। Lord, we thank you for your goodness. परमेश्वर आपकी एक भलाई के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं। We know that you're in control. और परमेश्वर हम जानते हैं कि आप नियंत्रण में हैं।
Lord, and you know how this is going to end. और आपको ही पता है कि परमेश्वर ये कैसे खत्म होने वाला है। Lord, help each one of us to just do our best. और यहाँ पे परमेश्वर हर एक के जीवन में हम लोग एक अच्छा एक जिंदगी आपके साथ आप हम लोग जी सकें, इसके लिए सहायता और मदद कीजिए। I pray we would be faithful above everything. और परमेश्वर हर किसी की चीज़ में हर बात में हम लोग एक विश्वास योग्य ठहरे, इसके लिए हम लोग मदद कीजिए। That we would seek you with all of our hearts. और ताकि हम लोग परमेश्वर आपको पूरे हृदय से आपको ढूंढ सके परमेश्वर। Lord, and that we would be people of good influence. और यहाँ पे परमेश्वर एक अच्छा एक प्रभाव डालने वाले एक व्यक्ति के समान हमें बना। People that are happy and full of joy. परमेश्वर जो व्यक्ति कहलाए एक बहुत ही खुशहाली की जिंदगी बिताने वाले व्यक्ति के समान। And Lord, we pray, we look forward to what you are going to do. और यहाँ पे हम लोग परमेश्वर हम लोग ताक में है कि आप आगे क्या करने वाले हैं उसको देखने के लिए। You have not forgotten us. और आपने कभी भी भूला नहीं है हमें। You are so many steps ahead of us. और बहुत सारे कदम आप हमसे बहुत ही आगे हैं। But we're so glad that you're also walking next to us. और यहाँ पे इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं परमेश्वर, आप हमारे साथ साथ हम लोग चल रहे हैं, आप चल रहे हैं। And we can hold your hand और आपके हाथ को पकड़कर and trust you. और आपको आपके ऊपर विश्वास रखकर So I pray for a great change in our hearts. परमेश्वर एक हृदय में एक बड़ी बदलाव के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। In your name, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।